Welcome to CBSE tutorials. My dear students, today we will do chapter number 2 of your new exploration science book from NCERT of 9th class. The name of the chapter is, as you know very well, Cell, the fundamental unit of life. Here it is named as Cell, the building block of life. This is a beautiful picture in which a student in the lab observing a slide under the microscope. Under the microscope, he is able to see the various parts, the various components of the cell. The chapter begins like this. It is widely accepted among us the scientific community that life originated in water. Where life originated? It originated in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools. Now the question is that there are some examples like hot springs of such environments in India, like the hot springs of Puga Valley in Ladakh. Underline this. The hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperatures, nearly at the boiling point of water. Now, what is the boiling point of water? That is 100 degrees Celsius. Even in a cold climate, these hot springs have the temperature of 100 degrees Celsius. These environmental conditions seems to be similar to those on the early Earth. About how many years? 3.5 billion years ago. Now, next very important question, what are thermophiles? Write down questions on your books as your choice is there. If you want to make extra questions, you can write on your notepad also. What are thermophiles? Answer is, underline the organisms living in these hot springs whose temperature is near about 100 degrees Celsius. They are mostly heat-loving bacteria. Now these heat-loving bacteria, they are known as thermophiles. Very important question. And one thing more, all the thermophiles, they are unicellular. Now scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, which is in Lucknow. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. Studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. Around thermophile bacteria, what is found? That calcium carbonate is formed rapidly around them. Because of these deposits of calcium carbonate, they may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions. And they may have also helped in the formation of the first protective membrane. This calcium carbonate is known as the barrier that defines a cell. Now next paragraph, all living organisms are made up of cells, as you know. The cell represents the basic level at which life exists. Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell, while others like plants, fish, birds, we all human beings, we are made up of millions of cells. That's why we are known as multicellular. And all these cells, they are working together. A group of similar cells performing similar functions from tissues. Different tissues are organized to form an organ, and several organs work together to form organ systems, such as nasal pores, nasal cavity, trachea, and lungs form respiratory system. Note down, group of cells, they form group of cells, arrow, tissues, TISSUES, then again arrow, they form organs, arrow, organ forms organ system, arrow, organ systems form organism. This is how cell is the basic structural unit of life.
Even when cells are organized into tissues, organs, and organ systems, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms. This makes the wonder how such tiny cells perform so many different activities. What are the different components of the cell? How do cells in our body communicate with each other? Do cells live forever or do they die? In this chapter, we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of cells. Now we are going to enter into the fascinating world of science. How to study cells? What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? बेटा यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारी आंख के पास ऐसी क्या कैपेबिलिटी है जो दो चीजों को, दो बहुत नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख सकती है। इमेजिन करो टू टाइनी डॉट्स एक पेपर के ऊपर आपने ड्रॉ की। एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। अगर हम इन पॉइंट्स को पास में ले आए एक दूसरे के तो ये हमें अलग अलग सेपरेट नहीं दिखाई देंगे। When viewed from about 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को अंडरलाइन कीजिए, क्या है ये? द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, जहां से आप इजीली पढ़ते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका बुक का डिस्टेंस आपकी आंखों से कितनी दूर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर आप इसके और पास लाते हो ना किताब को 25 सेंटीमीटर से, तो आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। ये समझो, 25 सेंटीमीटर के पास अगर आप बुक लाते हो ना आईज के, तो आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। नाउ 2 points separated by about 0.1 mm can be seen as distinct। और कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं? 0.1 mm तक। उसके बाद भी अगर हम चीजों को देखने की कोशिश करें ना तो हमें दिखाई नहीं देती। अदरवाइज दे अपीयर एज सिंगल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। 0.1 mm को क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है भाई इस चैप्टर में, पुराने चैप्टर में नहीं था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई? आप फटाफट से आंसर देंगे, इट इज 0.1 mm। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब कितनी हद तक हम सेल को कह सकते हैं कि वो छोटा होता है? A cell is usually too small to be seen by the unaided eye। ये इसकी हद है कि हम आंखों से इसको देख नहीं सकते। This raises an very important question। क्या important question? बायोलॉजिस्ट जितने भी थे उन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल्स का स्टडी किया। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई से भी छोटे छोटे थे। यू हैव लर्न अबाउट कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में आपने पढ़ा है। कन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लगी होती हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, जो मैग्नीफाइंग करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में। ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, अंडरलाइन कीजिए। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665। ये आपको पुरानी बुक में भी मिल जाएगा। यूजिंग अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन है, किस माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया था? भाई उन्हीं के द्वारा बनाया गया था सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उसकी कैपेबिलिटी आप अंडरलाइन कर सकते हो अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं एमसीक्यूज में। 200 to 300x मैग्निफिकेशन, अंडरलाइन दिस। इतनी मैग्निफिकेशन पावर थी उसकी। व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, जब रॉबर्ट हुक ने, कॉक क्या होता है बेटा? पेड़ की जो बार्क होती है ना, छाल, उसके सेल्स, डेड सेल्स। उसने देखा स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, जिसका नाम उसने रखा सेल्स, क्योंकि लैटिन वर्ड में मीनिंग बताया हुआ आपकी पुराने चैप्टर में, पुरानी बुक में, कि रूम, सेल्स का मतलब होता है रूम। इन स्कूल लेबोरेटरी लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व। आप भी अपनी लेबोरेटरी में जाओगे जब स्कूल की, तो आप देखोगे कि माइक्रोस्कोप, वहां पे लाइट माइक्रोस्कोप जिसको आप हैंडल करते हो, जिसमें स्लाइड्स देखते हो, वो बना होगा, ठीक है? जिसमें देखिए आई पीस है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज मिरर, फाइन एडजस्टमेंट नॉब, हैंडल बेस। अब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन। तो आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कन्वेक्स लेंस यूज हो रही है मैग्निफिकेशन के लिए, वो दिमाग में रखो, बाकी कुछ नहीं।
नीचे आ जाओ आप, एक्टिविटी 2.1 दे रखी है, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। ये आपकी लेबोरेटरी का जो एक्टिविटी है वो है, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी क्योंकि लैब में जाकर करने वाली है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दिया हुआ है आपकी बुक में, बहुत ही खूबसूरत। लाइट माइक्रोस्कोप्स की बात हम पहले कर रहे थे, अब साइंटिस्ट ने पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी लेकर आए। अब इससे है क्या, अब बच्चे पूछेंगे छोटे छोटे 9th क्लास के अपने टीचर को कि भाई क्या फर्क है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसमें आप सेल स्ट्रक्चर को फाइन फाइन डिटेल्स देख सकते हो। जैसे मान लो कि किसी को ना चश्मे के बगैर कैसा दिखता है, और जब चश्मा लगा ले तो कितनी क्लैरिटी आ जाती है। यही फर्क है सिंपल माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और बढ़िया सेल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। बड़ी बढ़िया वाली बात है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लाइट की प्रेजेंस में देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को यूज किया जाता है ताकि हम और भी ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस बाहर देख सकें सेल स्ट्रक्चर की। ठीक है, एट नैनोमीटर स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको नैनोमीटर स्केल तक चीजें मैग्नीफाई होकर दिख जाती हैं विद रिमार्केबल क्लैरिटी। एक और चीज अंडरलाइन करने वाली है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो ये बॉक्सेस जो होते हैं साइंस में, इनको कभी नहीं छोड़ा जाता। तो 1 यूनिट कन्वर्शन आप लिख सकते हो, दी भी हुई है बुक में। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर का सिंबल देखिए, ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखेगा, एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील सेल, जो प्याज की झिल्ली है उसके सेल का, एक सेल का कितना साइज हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, जो भी डायमीटर आपको दिख रहा है माइक्रोमीटर में, माइक्रोस्कोप के नीचे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। उस डायमीटर में कितने सेल्स हैं, वहां पे नंबर ऑफ सेल्स, उनको डिवाइड कर लोगे तो आपको अनियन पील सेल का एस्टिमेटेड साइज पता चल जाएगा। सपोज करो 25 सेल्स हैं, अंडरलाइन कीजिए, कितने सेल्स हैं अनियन पील के, 25 सेल्स हैं, उन आर सीन अलोंग द डायमीटर। तो उस डायमीटर में जहां आप देख रहे हो वहां दिख रहे हैं, कितने सेल दिख रहे हैं, 25। इन दैट केस द साइज ऑफ 1 अनियन सेल वुड बी 5000 माइक्रोमीटर। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि आप उसको डिवाइड करोगे किससे, 5000 माइक्रोमीटर क्या है, डायमीटर, क्या है, पूरा डायमीटर। फॉर्मूले में देखो ना, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर में कितना डायमीटर है, वो 5000। अब नंबर ऑफ सेल्स उस डायमीटर में कितने प्रेजेंट है, उससे डिवाइड कर लो 25 से, समझ आ रहा है, कितने हो गए, 200 माइक्रोमीटर। बुक में देखो ना, इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, ये आपकी पुरानी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल? The total magnification of a microscope depends upon its magnifying power of eyepiece and objective lens. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड करती है, अंडरलाइन करिए, इट डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस, जहां से आप देख रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूं मैं। इफ बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, then the total magnification will be 100x. It means that a cell with an estimated size, अगर 200 माइक्रोमीटर हम बोल रहे हैं उसका साइज है अनियन पील सेल का, will appear 100 times larger. कितना बड़ा दिखेगा हमें, 100 times. Okay? Thus a microscope allows us to see very small structures clearly, as it is an essential tool for studying the cell structure. Over the years, scientists have improved the microscope, करते गए, improve करते गए। 3 main feature इसके हैं, resolution, measure of clarity, contrast the difference in brightness between various parts of an object, and magnification। ये वाली जो improvements हुई ना बेटा, इन्होंने माइक्रोस्कोप को एक पावरफुल टूल बना दिया सेल्स को स्टडी करने के लिए। अब इस टोमेटो के सेल्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेसिया लीफ शोइंग स्टोमेटा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लाइव देख रहे हो अपनी आंखों से। यू कैन सी पिक्चर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेसिया लीफ
इसको हमने किस में स्कैन किया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, फिगर 2.4। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपने पढ़ा है कि सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी लिखवाया था। For these cells to function as units, they must be able to interact with one another and with the surroundings. These interactions occurs at the cell boundary. सेल की सेल बाउंड्री होती है, क्यों भाई, ठीक है ना? Where substances move between the cells and their external environment. Even single-celled organism exchange material and respond to their environment through the cell membrane. बहुत बढ़िया वाली बात बोली है, कम्युनिकेशन करता है सेल, कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से। किससे करता है कम्युनिकेशन, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, राइट? तो हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका, सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो कई जगह टीचर्स ने जो है ना पुरानी बुक से चैप्टर स्टार्ट करवा दिए, जैसे मैंने भी पहले आपको पुरानी बुक से पढ़ाया था, तो वहां पर दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि कुछ ऐसी नई चीज तो नहीं है बुक में जो हम बच्चों की छूट ना गई हो। तो चाहे टीचर्स ने क्लासेस में करवा दिया हो ये चैप्टर पुरानी बुक से, लेकिन वो एक बार जरूर रीडिंग इसकी दिलवाएंगे पूरे चैप्टर की, कि कुछ छूट ना जाए बच्चे का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। आप यहाँ से इसकी ना डेफिनेशन को अंडरलाइन कर सकते हो। इट इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। देखो नई बुक है तो नया मटेरियल आपको डालना पड़ेगा डेफिनेशन में। It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ बच्चे तो इसी गलतफहमी में जीते रहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कुछ और होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ और होती है। बिल्कुल गलत। जहां मैं सेल मेम्ब्रेन बोल रही हूँ सोच लो कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। अंडरलाइन करो, इज सिलेक्टिवली परमिएबल। मैं बहुत बार बच्चों को मीनिंग बता चुकी हूँ सिलेक्टिवली परमिएबल का, एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि सिलेक्ट करके चीजों को अंदर बाहर करना सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो भी आए चल अंदर, जो भी आए चल बाहर, ना। विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। वेरी वेरी गुड इजी लैंग्वेज इन द न्यू बुक। आई लव दिस बुक। You have learned all oxygen and carbon dioxide move across the membranes of the alveoli in the lungs. ये तो आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि alveoli से जो आपकी ऑक्सीजन और CO2 है वो पास होती रहती है गैस। How does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? इसीलिए ना, क्योंकि वो क्या है, selectively permeable. Now activity 2.2 let us experiment. ये आपकी बुक की खासियत है, ये आपको साइंटिस्ट बना के छोड़ेगी। हर चीज को एक्सपेरिमेंट की वे से बताया गया। जैसे एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया, बीकर ए लिया और बीकर बी। विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। अब क्लास का कोई भी बच्चा आलू ले सकता है अपनी किचन से, उसको इक्वल साइज में विद द हेल्प ऑफ नाइफ काट लो। काट लिया, इमेजिन करो, काट लिया, काट लिया। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। आपने वेइंग बैलेंस यूज करना है और उसमें दोनों पीसेस का इनिशियल वेट मतलब स्टार्टिंग का वेट, काटने के बाद नोट कर लो कहीं। पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन अ बीकर ए विद प्लेन वाटर। प्लेन वाटर होता है सादा पानी नलके में आ रहा है जो, बीकर ए में डालो और उसमें एक पोटैटो का पीस डाल दो। डाल दिया, वेरी गुड। पुट द अदर पीस ऑफ द पोटैटो इन बीकर बी। उसमें 20% सॉल्ट या चीनी डालनी है, या चीनी, बच्चे चीनी और नमक दोनों डाल देंगे भाई, पीना थोड़ी नमकीन पानी, नींबू पानी थोड़ी बना रहे हो। और वर्ड यूज किया है बीच में, 25% या तो सॉल्ट डालो उसमें या फिर शुगर। भाई क्यों, हम क्या बना रहे हैं उसको, कंसंट्रेटेड बी वाले, है ना। हमारे पास जो डाइल्यूट है वो प्लेन वाटर है, लेकिन बी वाला जो सॉल्यूशन है उसमें 20% सॉल्ट डाला है। अब दोनों में बराबर आपने पोटैटो पीस डाल दिया। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट एन आवर। आधे घंटे के लिए अनडिस्टर्ब्ड उसको छोड़ दो आप, जब तक उसमें कोई विजिबल चेंज साइज ऑफ द पीसेस में आपको दिखाई ना दे। देखने से पता चल जाएगा। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। अब आप दोनों पीसेस को निकाल लो और उसका फाइनल वेट देखो। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वेट। अब आपने फाइनल इनिशियल में से फाइनल वेट को आपने कंपेयर करके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे ऑब्जर्व दैट बीकर ए का जो पोटैटो है वो फूल जाएगा। क्यों फूला, क्योंकि वो प्लेन वाटर में किसमें है,
प्लेन वाटर में पोटैटो एक सेल है, पोटैटो क्या है, एक उसमें सेल है, बाहर कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा है तो आउटसाइड से अंदर की तरफ पानी चला गया, तो पोटैटो ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और वो फूल गया। बीकर बी में पोटैटो श्रिंक हो जाएगा, क्यों, आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 20% शुगर या सॉल्ट डालकर बढ़ा दी, अब उसमें पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी हाई टू लो कंसंट्रेशन बाहर की तरफ आएगा और साइज कम हो जाएगा पोटैटो पीस का, वो श्रिंक कर जाएगा। आगे चलकर मैं इन्हीं चीजों के आपको नाम दूंगी, इसी चैप्टर में आ जाएंगे भाई, जो आपने पुरानी किताबों में पढ़े हैं ना, हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाता है, वही सब कुछ है। आई होप कि मजा आ गया होगा आपको आलू वाला सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके, है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बच्चे करते हैं ना तो दिमाग में सदियों तक रहता है, जैसे हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, हमें आज तक याद है। व्हाट इफ मूंग बीन सीड्स आर केप्ट इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स, व्हाट विल हैपन टू देम। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप मूंग बीन्स को डालोगे, द सीड्स विल श्रिंक, लिख लो, ये तो करके देख लेना, आलू वाला हाल होगा। अगर प्लेन वाटर होता ना बेटा, द सीड्स विल स्वेल अप, लेकिन कंसंट्रेटेड है तो दे विल श्रिंक। ये पार्ट 1 है वीडियो का भाई, मैं इसमें सारा आपको नहीं पढ़ाने वाली, इसलिए घबराओ मत, थोड़ी देर पेशेंस रखो, सुनो मुझे, सुनना ही अल्टरनेट है, यू शुड बी ए गुड लिसनर। ध्यान इधर उधर जा रहा है तो पता चल जाता है। व्हाट डू यू इन्फर, इन्फर का मतलब क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या जानकारी लेकर आए हो, व्हाट डू यू इन्फर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट, क्या एक्सपेक्ट करते हो, द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज्ड while the weight of the potato in piece in beaker B has decreased. This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell but not the sugar or salt molecules. मेम्ब्रेन ने पानी को ही अंदर जाने देना है, अंदर से बाहर आने देना है, उसने सॉल्ट और शुगर मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल एंट्री नहीं देनी, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। अब समझ गए आप सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब। Water moves from an area with more water and less dilute solution, ठीक है, dilute solution plain water, to an area with less water and more solute concentrated solution, जैसे salt वाला, until the concentration in the two areas become equal. The movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. What is osmosis? Exchange of water या movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. आप कहीं से भी पानी का एक्सचेंज, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी घुसेड़ रहे हो और बोल रहे हो कि ऑस्मोसिस हो रहा है, नहीं, कहां से, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होगी तब उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, अदरवाइज तो दुनिया में कहां का पानी, कहां पंजाब का हिमाचल में घुस रहा है, हिमाचल का हरियाणा में। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 डाई स्प्रेडिंग इन वाटर एंड 7.9 फ्रेग्रेंस स्प्रेडिंग इन, हाय हाय हाय, क्या एक्टिविटीज आने वाली हैं। इन ग्रेड 8 में आपने पढ़ा था ना पानी में इंक कैसे फैल जाती है, अच्छा आपने तो पढ़ी नहीं है, पुरानी किताब पढ़ी हुई है। जिन बच्चों ने क्यूरियोसिटी पढ़ी है ग्रेड 8 की, उनके लिए बड़ा इजी है समझना। फ्रेग्रेंस हवा में कैसे स्प्रेड हो जाती है, वो तो अगरबत्ती घर में लगा दो तो दूसरे तीसरे कमरे तक खुशबू चली जाती है, एयर मॉलिक्यूल्स लेके जाते हैं, ड्यू टू अ डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन इज द अंडरलाइन, डिफ्यूजन एक नया वर्ड है, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन occurs even without a membrane, बिना मेम्ब्रेन के भी चला जाता है ये, क्योंकि गैसियस है ना। Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane in plants. Water from the soil enters into root. Very good example, अंडरलाइन करिए, पुरानी बुक में भी था ये। प्लांट्स में आप रोज पानी दोते हो ना, उनको सुबह शाम दो, पानी कहाँ गायब हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि जादू मंत्र, नहीं जी, पानी रूट सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के। और नहीं दोगे तो पौधा सूख जाएगा, क्योंकि अंदर से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, पौधा सूख जाएगा। व्हाट इफ, हम तो कायल हो गए बनाने वाली की, थैंक यू, क्या बनाई है किताब, एक्सप्लोरेशन। व्हाट इफ तो कमाल का है,
with diagram. A cell is kept in salt or sugar solutions of different concentration. Solute concentration of extracellular medium. भाई समझो इस चीज को, घबराओ मत. एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का मतलब होता है सेल के बाहर का मीडियम. एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम यानी सेल के बाहर का मीडियम. सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज इक्वल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम. इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. यानी आपका जो सेल के बाहर का मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर की कंसंट्रेशन अंदर की कंसंट्रेशन को क्या नाम दिया? इंट्रासेलुलर मीडियम. ये दोनों अगर एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर मीडियम की कंसंट्रेशन सेम है, सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक. सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक. यानी सेल देखो, सेल डाले हैं ना पिक्चर में, सेम रह रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में थोड़ी देर के बाद भी. अब दूसरे में आ जाओ. सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर बाहर कम है अंदर ज्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ पानी मूव करना शुरू कर जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और साइज भी देखो बढ़ रहा है सेल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तीसरे नंबर पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में ज्यादा है और अंदर कम है तो पानी अंदर का बाहर जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और सेल आपके स्मॉल इन साइज. तो ये था इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन अ सेल. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको एग्जाम में दर्शन जरूर देगा. नेक्स्ट इज फिगर 2.7. मुझे पता है मुझे झेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इंटरेस्ट लोगे तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, कि तब आप मुझे बहुत प्यार से सुनोगे. अगर इंटरेस्ट नहीं है, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, कहीं इधर उधर बैडमिंटन खेल रहे हो, तो फिर आपका मुश्किल है. भगवान ही मालिक है. फिगर 2.7 स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. गीता का एक श्लोक है, मन बहुत चंचल है और सबसे ज्यादा चंचल 9वीं क्लास में होता है. उसके बाद होश आती है +1 +2 में, जब बेड़ा गर्क हो गया होता है 10th में. इसलिए मन को वश में करो और उसका सबसे अच्छा तरीका है समझाओ. मन को समझाओ, नहीं तो मन बहुत छलांगे मारता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. आपको यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक डायग्राम देखने को मिल रहा है. वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड बाइलेयर. 2 लेबलिंग है बस. लिपिड का मतलब फैट्स और प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन. किससे बने? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, अमीनो एसिड से. ये दोनों चीजें हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं. और मजे की बात, बड़ी मजे की बात, सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाली ये दोनों चीजें सेल ही बनाता है. सेल का कंपोनेंट ही बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है आपका लिपिड, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका बनाता है प्रोटीन. वहां से बनाकर ये दोनों सेल बायोजेनेसिस करते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं. क्या वाह 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 वाह, सब कुछ अरेंजमेंट अंदर कर रखा भगवान ने. स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स. ये बढ़िया वाली बात बोली इसने, जो पुरानी बुक में नहीं है, अंडरलाइन करो. एक्सट्रीमली थिन है, बहुत पतली, इतनी पतली हवा है तो उड़ जाए. अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स. इतनी देखो, पता भी नहीं चलता, इतनी पतली है ये. और अगर मोटी हुई तो 1 नैनोमीटर, तब भी नहीं दिखनी. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. बड़ा गधा बच्चा भी है ना क्लास में, इसको कुछ याद नहीं रहता, वो इतना भी याद करके चला जाए पेपर में, ये भी लिख दे सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, मार्क्स मिल जाएंगे. द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर. क्या क्या वाकई में क्या किताब है. फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मुझे अपनी +1 याद आ गई मेडिकल की, तो ये वर्ड वहां पर यूज हुआ है, फर्स्ट टाइम 9th में डाल दिया इन्होंने. फ्लूइड मोजाइक मॉडल है एक, जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है. किसका है? सेल मेम्ब्रेन का. The membrane has a lipid bilayer, 2 layers of special fat molecules with water attracting heads to outwards and water repelling tails inwards. Membrane में एक lipid bilayer होती है, 2 layers of special fat molecules. एक हिस्सा lipid bilayer का आप सेल मेम्ब्रेन में भी देख रहे होंगे. एक हिस्सा जो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ, वो पानी को अट्रैक्ट करता है, और जो अंदर की तरफ है वो पानी को रिपेल करता है. हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देम.
दूसरा पॉइंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का। अब आपको याद करना पड़ेगा पेपर में, जैसे केमिस्ट्री में डाल्टन थ्योरी आएगी ना, इसमें इस बार फ्लूइड मोजाइक मॉडल आएगा। सेकंड पोस्टुलेट है इसका, द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज। साइडवेज में सेल मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज अ फ्लूइड, हेंस इट इज अ फ्लूइड। अब बच्चों आप क्लास 8 से याद करो, व्हाट इज अ फ्लूइड? गैसेस एंड लिक्विड्स आर नोन एज फ्लूइड। Proteins in the membrane acts like gatekeepers in helping substances pass through. अब सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का क्या काम है? ये गेटकीपर का काम कर रहे हैं। ठीक है, किसका काम कर रहे हैं? गेटकीपर का। अंदर डांस कौन कर रहा है? लिपिड मॉलिक्यूल। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model. क्योंकि टाइल्स की तरह मॉलिक्यूल्स अरेंज, तो इसको मोजाइक मॉडल बोलते हैं। ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग। तो अब आपको पता चल गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइड क्या है? वही जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है रोटेट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, साइड वाइज मूव कर रहे हैं, इसलिए उसको बोल दिया हमने फ्लूइड। और मोजाइक मॉडल इसलिए जो प्रोटीन्स उसकी रक्षा कर रहे हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, लिपिड्स और प्रोटीन्स की, वो एक टाइल्स के रूप में अरेंज्ड है सेल में, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट। All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. However, cells of plants, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. एक additional membrane है cell membrane के बाहर, उसको cell wall बोलते हैं। What do you think the necessity of the cell wall in these cells? Let us investigate. आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेम्परेरी स्लाइड बनाते हैं अनियन पील की। हम इसलिए माउंट कर रहे हैं सेफ्रनिन से। पहले भी मैंने बताया था स्टेनिंग करने के लिए यूज होते हैं, ताकि हम पार्ट्स को अच्छे से देख सकें। यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। बेटा जब आप ये करोगे ना, तो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी कवर स्लिप कैसे लगानी है आपने, ताकि एयर बबल ना बने। सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ चीक सेल्स बाय जेंटली स्क्रैपिंग द इनर साइड ऑफ योर चीक। ये भी आपको टूथपिक से आराम से हो जाता है। ये भी स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड कर देने हैं। 1 ड्रॉप वाटर की ऐड करनी है। मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालोगे उसके ऊपर। केयरफुली कवर स्लिप से कवर कर दोगे। बोथ द स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में देखो, अनियन पील वाली भी और चीक सेल्स वाली भी। अनियन पील वाली आपको प्लांट सेल दिखाएगी, चीक सेल वाली आपको एनिमल सेल दिखाएगी। क्या फर्क नजर आएगा आपको? उसमें सेल वॉल नजर आनी है प्लांट सेल में, अनियन पील में, ठीक है, और चीक सेल्स में सेल वॉल नजर नको नहीं आएगी। What do you observe? Onion peel cells are box shaped and irregularly arranged, whereas cheek cells are irregularly arranged. Why do you think this difference exists? Because different cells are there. Prepare 2 slides of Rio leaf peel and human cheek cells. Again बनाइए 20% sugar solution, उसमें ऐड कीजिए। ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। आधे घंटे के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट रिमेन, सेल रिमेन सेम बट द इनर कंटेंट श्रिंक। अगर आप इसको ना देखो, ये कितना बढ़िया वाला एग्जांपल दिया ना प्लाज्मोलाइसिस का। सेल वॉल वैसे ही रहेगी, अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाएगी इनर, एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस। यू मे ऑब्जर्व दैट द चीक सेल्स ऑन द अदर हैंड हैव श्रंक कंसिडरेबली। बाद में इनको नाम देंगे ये भी। सेल वॉल आगे नेक्स्ट क्या है हमारा? सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स। In general, plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Therefore, plant cells have an additional covering. अब आपको तो पता है, आप तो भाग जाओगे, बारिश लगेगी, यहाँ छुप गए वहां छुप गए, पौधे कहाँ जाए? तो भगवान ने इनको प्रोटेक्टिव लेयर दी, क्या दी? सेल वॉल। Underline the cell wall also help leaf flower remain firm and maintain their shape, help plants straight upright, although rigid. The cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है ना, सेल वॉल भी परमिएबल है, किसकी तरह? सेल मेम्ब्रेन की तरह। ये भी पानी और कुछ मिनरल्स को ही पास होने देती है। Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. When we place a Rio leaf या फिर onion peel
कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस. However, cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. The inner content of the cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. This shows that the cell wall helps plant cell remain firm in their original shape. ये आपकी पुरानी बुक में भी था. Animal cells such as cheek cells do not have cell wall. Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and shrink. तो animal cells, plant cells की रक्षा कर देता है cell wall. ठीक है, लेकिन हमारे जो एनिमल सेल्स हैं, चीक सेल्स, हमको ह्यूमन बीइंग चीक सेल गाल तो हमारा ही है, लेकिन हमें आते तो एनिमल्स में ही है. हमारी सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हमें अगर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालोगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा. आपने ना कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, साबुन से कपड़े धो के देखना या निरमा में हाथ डुबो के रखना, निरमे वाले पानी में, थोड़ी देर बाद ना निकालना उसको, 10-15 मिनट के बाद आपकी उंगलियां देखना कैसी हो जाएंगी. ठीक है, तो आपको वो लाइव एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया जो आपकी किताब में भी नहीं लिखा. यही खासियत है रजनीश कौर सीबीएस ट्यूटोरियल की. विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली. विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज देयर शेप इजीली. दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी supports the overall movement and functioning of animal tissues. The plant cell wall is primarily made up of cellulose underline, a type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. अगर आपको कोई पूछ ही ले कि बता भाई सेल वॉल किससे बनी है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस. सेलुलोस एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स एक दूसरे से जुड़कर बने हैं. नेचुरल है. सेलुलोस इन आवर डाइट एक्ट एज रफेज. आप खीरा खाते हो, है ना, तर खाते हो, मूली खाते हो, गाजर खाते हो, उनके छिलके जो है वो एज सच सुबह निकल आते हैं. क्यों? रफेज है वो, रफेज. ठीक है, वो झाड़ू का काम करता है, helping in digestion. Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells. तो ये लिविंग बींग्स में भी देख लो, फंजाई और बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जिनके सेल वॉल होते हैं. ना यहाँ पर आपका पॉज एंड पॉन्डर है. What argument would you give for necessity of a cell with wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another? तो आप एक नेसेसिटी बता सकते हो सेल वॉल की प्लांट्स को, क्या आर्गुमेंट कर सकते हो? वुड यू गिव फॉर नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल इन प्लांट्स? बिकॉज वो फिक्स्ड वन प्लेस पे रहते हैं, है ना, सनलाइट पड़ती है उनपे, पानी उनपे गिरता है, कोई भी उन पर बैक्टीरिया वो मूव तो कर नहीं सकते, अपने आप को क्लीन भी नहीं कर सकते, अटैक हो सकता है उनके ऊपर. तो सेल वॉल इज वेरी मच नीडेड ओवर देयर. You can give these arguments. Question number 2. What consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as a cell membrane? What consequences? The cell will die. They can't remain in hot temperature, cold climatic conditions or in parasitic conditions. They can't prevent themselves. They can't move from one place to another. So why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal size? Because initially we have to take the same size. That's why we can make comparison after placing them in different solutions and measure their initial weight before placing them in different liquids. Because we need a standard weight initially. Then only we can conclude that what differences are there. Now next is the cell interior coordinative working system. ये जो है बच्चे, ये वाला पार्ट जो है, ये मैं आपको पढ़ा ही देती हूँ. The cell interior or coordinated working system. चलो ठीक है, यहाँ तक ये चैप्टर हम आज करते हैं. इसके बाद वाला जो पार्ट है बेटा, यही वाला 2.3 द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम. इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि आप इतना लगातार मुझे सुनो. वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे. टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.